Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए फोन लाइन पर आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Domestic equity benchmarks plunged 1.8% amid negative global cues. Sensex closes at 36,033 points. Nifty settled at 10,607 points. Rupee weakens 23 paise against the US dollar and crude prices slip amid increasing coronavirus cases worldwide. नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू बाजार सूचकांक 1.8% लुढ़क गए। सेंसेक्स 36,033 पर और निफ्टी 10,607 पर हुए बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले 23 पैसे की गिरावट में रहा और विश्व भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बीच कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। वैश्विक बाजारों में बिकवाली के बीच वित्तीय शेयरों में गिरावट के चलते प्रमुख बाजार सूचकांक आज 1.8% लुढ़क गए। दिन में एक समय 35,877 के आज के न्यूनतम स्तर को छूने के बाद बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 661 अंक कम होकर 36,033 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 195 अंक कम होकर 10,607 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.95% की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.93% की मंदी दर्ज हुई। Equity benchmarks today plunged 1.8%, dragged by losses in financial stocks amid sell-off in global markets. After touching a low of 35,877, the 30-share BSE Sensex settled 661 points lower at 36,033. Likewise, the NSE Nifty fell 195 points to 10,607. In the broader market at the VSE, the mid-cap declined 0.95% and the small cap logged loss of 0.93%. Shares of HDFC Duo led the fall in the indices, shedding up to 2.9% after HDFC Bank said it has launched a probe into its auto lending practices following allegations against the conduct of a long-time executive who retired on the 31st of March this year. IndusInd Bank, Axis Bank, Maruti, Bajaj Financial Services, Power Grid and SBI were among the other major laggards. On the other hand, Titan, Bharti Airtel and Bajaj Auto closed with gains. According to traders, besides stock-specific actions, negative cues from global markets amid escalating US-China tension and rising COVID-19 cases dampened investor sentiment. On the coronavirus front, the number of cases around the world linked to the disease has crossed 1.3 crore. In India, according to the Health Ministry, the number of infections spiked to 9.06 lakh. Udayan, I hope you're still with us on Market Mantra. Right there, Arjun. Udayan, we're seeing a 660 points decline in the markets today attributed to profit booking by experts such as yourself. But just looking at the NSE Nifty, that went down by almost 3% with another bank like Yes Bank declining 22% for the last 3 days. What's happening in the banking index? Why are we seeing a decline in valuation? Well, Arjun, basically, whenever we are talking about banking, and we know that banking constitutes a very significant portion of the index. But coming back to banking, whenever there is nervousness as to whether the people would be able to get their loans back or not, and when you're talking about loans coming back, we're talking about economic activity. When people earn, they can repay their debt or repay their loans. So whenever there is some kind of a
fear or apprehension that people will not be able to keep earning, or shall we say revenue visibility for individuals or people or companies. When that is coming into question, then banks' health comes into question, their profitability and earnings come into question, and therefore it gets reflected in the stock prices. So that is exactly what you're seeing. As you mentioned, all these information about lockdowns, etc., in the US, especially in California and in Florida, and then also in some of our cities in India, whether it's Bengaluru or Patna or Guwahati. So all these things are playing in the minds of the investors. आपने जो बात की बैंक्स के फाइनेंसेस की, उसमें काफी सपोर्ट मिल रहा है उनको आरबीआई से, सरकार से। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाई गई है एनबीएफसीज और एचएफसीज के लिए। जो बैंक्स हैं उनको सुविधा दी गई है कि वो जो लोन्स देंगे उन्हें फुल गारंटी मिलेगी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो शुरू की है सरकार ने। सो आपको लगता है कि इन सब स्कीम्स के बल पर इस स्थिति में भी जो एक प्रवाह है ऋण का वो बना रहेगा बैंक से जरूरतमंदों तक, क्योंकि बहुत जरूरी है अभी कि पैसा जो कंपनीज है उनको भी मिलता रहे और डिमांड क्रिएट करने के लिए कंज्यूमर्स को भी पैसा मिलता रहे। देखिए, सुनो, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जो आपने जिन सुविधाओं के बारे में बात की है वो एक फ्लोर बना के देता है, मतलब एक सपोर्ट दे रहा है। जैसे आप साइकिल चलाते वक्त एक सपोर्ट लेते हैं, या आपके पास एक बॉटम में एक सपोर्ट, फ्लोर मिल रहा है, तो वो एक बेस बना के देता है। पर वो जिस चीज के बारे में नर्वसनेस है वो ये है जो ऋण दिए जा चुके हैं, अब उनका क्या होने वाला है। क्योंकि कुछ कंपनियां या लोगों ने मॉरिटोरियम लिया है, कई जगह में इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल ही चालू नहीं हुई है। मतलब इलाकों में जैसे आप मान लीजिए हॉस्पिटैलिटी है, ट्रैवल है, तो सर्विसेज सेक्टर जो है वो तो इम्पैक्टेड है। तो फिर कई जगह में प्रोडक्शन नहीं हो पाई है। जैसे पैसेंजर व्हीकल्स में आपकी प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर तकरीबन मान लीजिए 50% डाउन है। तो ये कुछ चीजें हैं। और जैसे कि हम जाते हैं ऑटो क्षेत्र से, काफी सारी दूसरी इंजीनियरिंग क्षेत्र जुड़े हुए हैं, ऑटो फाइनेंस जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये जो आपने सहूलियतें सुविधाओं के बारे में बात की है, वो स्थिति को खराब होने से रोकेंगी, पर बेहतर होने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट है। और जो कि आप ये कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन है, इसमें ये प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। आज जहां जहां सुधार होता है एकदम से वहां पे स्थिति एकदम से खराब हो जाती है, फिर उसको लॉकडाउन करना पड़ रहा है। तो 100 साल पहले लॉकडाउन का एक जो दवा थी, मर्ज की दवा थी, वही हम 100 साल बाद दोबारा उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो देयर अ प्रॉब्लम अबाउट रेवेन्यू विजिबिलिटी। जो आपके स्टॉक प्राइसेस हैं वो रेवेन्यू विजिबिलिटी से डिटरमिन्ड हो जाते काफी हद तक। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी चूंकि नहीं मिल रहा, और हमारे जितने अब रिजल्ट आने वाले वहां पे भी रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको दिख नहीं रही है। अगर मान लीजिए आपने कह दिया पिछला क्वार्टर खराब गया है, चलिए कोई बात नहीं, पर आगे का क्या होगा ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उसी से ये नर्वसनेस आ रही है। तो उदयन, मार्च 25 के लोज के बाद से जो करीब 30-40% का एक रिकवरी हुई है सेंसेक्स में, निफ्टी में, इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप ने पिछले 1-2 हफ्ते में आउट परफॉर्म भी किया है। आज भी उनकी जो गिरावट है वो कम है। सो आपको लगता है कि ये जो हम 1-2 दिन पहले तक जो एक मजबूती का माहौल देख रहे थे सेंसेक्स में, वो या शेयर बाजारों में कहें, तो वो स्थायी नहीं रह सकता जब तक ये कोविड की समस्या बनी रहेगी? वो तो सोनू, वो समस्या बनी ही रहेगी जब तक ये वैक्सीनेशन नहीं आ जाता। वो कई महीनों तक ये चलता रहेगा। पर ये भी मैं आपको बताता चलूं कि सारे जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जैसे रिजर्व बैंक है, फेड है, ये क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी इंजेक्शन करे जा रहे हैं, फिस्कल स्टिमुलस मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, कैश आप इकोनॉमी डालने की वजह से, आप सोचिए एक टब है जिसमें से आप पानी सप्लाई करते चले जा रहे हैं, तो आप वहां पे अगर कागज की कश्ती भी रखते हैं वो भी ऊपर आ जाएगी। तो एक हाई टाइड, आर्टिफिशियल हाई टाइड बनाया जा रहा है ताकि बिल्कुल बॉटम ना फाइंड करे। तो ये इसके वजह से क्या होगा, कैश जब आपके एक्सेस इकोनॉमी में होती है वो स्टॉक्स को भी चेज करती है, तो वो ऊपर तो स्टॉक्स ऊपर जाते रहेंगे, मतलब एक ऊपरी लेवल पे होगा। पर ये काफी कंटिंजेंट है कि फिस्कल सपोर्ट और मॉनेटरी सपोर्ट कैसे मिलता है। जैसे ही वो वहां पे थोड़ा सा डाउट आने लगेगा, फिर वो डाउनवर्ड प्रेशर आ जाएगा। Udayan, the story also mentions about the whistleblower
by a top executive of HDFC, which has led to HDFC coming down in the banking and finance index. So we spoke about how there has been profit booking in this particular space. Should private banking index be concerned in the coming days, or what unfolds with this investigation? No, Arjun, I don't think it's going to be such a big thing. I don't expect it, although I'm not aware of the details. The other thing worth pointing out, Arjun, is that most of the banks are on a capital raising spree, as you would have mentioned in your various bulletins over last couple of days. Now, what they're trying to do is they're trying to make provisions for things going bad in the next couple of months. If people don't manage to repay their loans or there are problems, they're raising a lot of capital across the board. So it's even large companies are trying to do that. So people are taking corrective measures, and so there wouldn't be the kind of the kind of fears we had in 2008 when the global financial crisis started. Now we are on a slightly better regulatory plane, and things are slightly better. We are richer by the experience, so we may not need to worry that much. But of course, the economic activity remains a worry. Power index also went down because of profit booking. We saw BankX fell by 3%. Power index went down by 2.7%. Is that because it has been overvalued by the market, or there is some other factor? There could be some other factors. It could be there are a lot of times there's a lot of linkages that are involved out there. These industries are also linked with your economic activity, whether it's oil, whether it's coal, or whether it's power. If the economic activity is not slated to go up, nobody is really forecasting a rebound before 2021, a big rebound, a growth, positive territory growth. Here we are talking about the remaining part of the financial year going in just trying to recover lost ground because of the way we started our financial year. So with that, you need to work backwards, and that's what investors would be working things out. Having said that, despite all this, these sectors will be very critical. At some point we'll be riding out the storm, and that's when we need all the growth that we require from the infrastructure has to be there. आपने अभी मॉनेटरी सपोर्ट की बात की थी उदयन. कल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के फिगर्स आए जून के लिए 6.1% एंड 4% प्लस माइनस 2% आरबीआई का कंफर्ट जोन है, उसको थोड़ा सा ब्रीच कर लिया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने. क्या लगता है आपको आरबीआई के पास अब कितना और स्कोप है मॉनेटरी सपोर्ट देने का? क्या अगली उनकी जो पॉलिसी मीटिंग होगी उसमें आप आशा करते हैं कि कटौती होगी इंटरेस्ट रेट्स में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो मुद्रास्फीति के बारे में बात की, इन्फ्लेशन के बारे में बात की, ये गिरने वाला है. ठीक है, ये इसके दो कारण होंगे. एक तो ये है कि आपके जब मुद्रास्फीति पीछे जो आपने देखी थी वो सप्लाई चेन में ना काफी डिस्ट्रप्शन हुआ था सोनू, जैसे जिसके बारे में काफी चर्चा हुई है. कहीं पे कंपोनेंट नहीं मिल रहा, कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो उसके वजह से कहीं पे ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आ गई, उसके वजह से एक स्पाइक लगा था. दूसरी चीज जो हुई थी वो ये है कि हमारे यहाँ पे जैसे हमें तेल के दामों को बढ़ाया गया था, तो उसका एक कॉस्ट पुश बनता है. लॉन्गर टर्म में अगले कुछ महीनों में जो चैलेंज रहेगा वो इकोनॉमी में डिमांड साइड से आएगा, मांग के साइड से आएगा. उसको कैसे आप वो करेंगे? तो अगर आरबीआई फौरन नहीं करती है तो इवेंचुअली तो करने जाएगी ही, क्योंकि उनको थोड़े से सिग्नल्स देने पड़ेंगे. अगर वो रेट पे नहीं करती, कुछ और सिग्नल देने की कोशिश करेगी ताकि लिक्विडिटी ऑगमेंट हो, सिग्नलिंग ठीक रहे और ऑप्टिमिज्म बना रहे. तो ये मुद्रास्फीति का जो आपने आंकड़ा बताया वो चिंताजनक नहीं है, क्योंकि ये पीछे के कुछ फैक्टर्स है उसके वजह से ट्रिगर ऑफ हुए. और आपने जो सप्लाई चेन की बात करी, अब जो एक मुहिम चल रही है कि हमें ग्लोबल सप्लाई चेन का एक और इंटेग्रल हिस्सा बनना चाहिए. इनफैक्ट कल जो कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने 12 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं, जिनमें फूड प्रोसेसिंग, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और भी 8 सेक्टर्स हैं. कितनी आपको संभावना लगती है कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जो एक स्थान है उसको और मजबूत कर सकता है आने वाले वर्षों में? बिल्कुल, हम क्यों नहीं कर सकते हैं. हमने कई जगह में ऑलरेडी हम ग्लोबल सप्लाई चेन में हम लोग हैं.
जैसे कि आप देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वहां पे तो हम हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी जगह में भी नहीं है, कई जगह में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि हम उसको कितनी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे अगर नेशनल या कलेक्टिव विल है, हमारी सोसाइटी की, हमारे देश की राष्ट्रीय एक विल है कि हम यहाँ पे इन चीजों में हम करना चाहते हैं, तो हमें रोकने वाला कौन है? कोई भी नहीं रोक सकता। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास कैपिटल है, तो हमें ऑर्गेनाइज बेहतर करना है। आइडियाज की कमी नहीं, इनके ये जो सेक्टर है इनके पोटेंशियल के बारे में तो काफी दिनों से पहले से बात हुई है, और ऑटो कंपोनेंट तो एक्सपोर्ट होते चले आ रहे हैं। सुंदरम फास्टनर आज से 25-26 साल से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं कि ये यहाँ पे हो नहीं रहा है। यहाँ पे बहुत प्रेस किया जा सकता है और जरूरत भी है, क्योंकि हमेशा हमारा वो चैलेंज बना रहता है कि हम प्राइस पे कम्पीट करते हैं, हमारे करेंसी के डेप्रिसिएशन पे कम्पीट करने की बात करते हैं। वहां से हमें हटकर थोड़ा हायर वैल्यू एडेड आइटम्स में जाना पड़ेगा, जो जहाँ पे हमारी क्वालिटी और हमारी इनोवेटिवनेस की वजह से लोग हमें उठाते हैं, हमारे सामान को उठाते हैं, ना कि सिर्फ क्योंकि हम सस्ते में बेच रहे हैं या कुछ और कारण से दे रहे हैं। Udayan, coming back to the securities market performance, experts are citing that volatility is picking up in the market. Price levels are likely to go up and down. What would you advise investors? Would you tell them to be cautious and be stock specific in their trades? Well, Arjun, first of all, for lay investor, individual investors like you and me and Sonu and others, I would say that the best thing is to do it through, not do it directly, because how will a regular 10 to 6 or 9 to 5 office going person is going to track the market? It's too very complex. So I think the better thing is to do it through say a mutual fund route or something like that when you're going through an expert. And the other thing is, as mutual funds and other people say, that if you invest regularly, then there's something called the cost averaging that happens. And over a long period of time, what happens is the cost averages out and it lowers down, and you gain. You know, you're a net gainer, and you do that. So one is not to get hassled, not try to do anything smart or different, not try to do anything new or innovative. Do boring things, predictable things. Like if you're into a systematic investment plan, don't disrupt it unless there is an emergency going in. If you're paying your premiums in a life insurance come investment plan, do it regularly. If you really want to invest directly in stock, then go for defensive sort of sectors, say a pharma or a FMCG, because there the revenue visibility which we were talking about is there. No matter what the economy happens to the economy, you're going to have biscuits, you're going to have, men are going to shave. So those are and people are going to take medicines. So for a fact that certain things will keep moving regardless of whatever happens. So those are the sectors one should be investing in such times. उदयन, आपने जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट की बात की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा, उसमें आपने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को स्पेसिफाई किया। थोड़ा सा बताएंगे कि अभी की सिचुएशन में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके हिसाब से कितना होगा? कम से कम कितने वर्ष का आपका होराइजन होना चाहिए? देखिए, अगर आप ट्रेडर नहीं हैं, तो फिर अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, तो फिर आप खुद से सवाल पूछें कि मेरे को ये जो मैं निवेश कर रहा हूँ, ये पैसा मेरे को कब चाहिए? अगर आप अपने बेटा या बेटी के हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, जो कि 10 साल बाद है, फिर तो आप अब बेखट के इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कारण क्यों? हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश में आर्थिक प्रगति होगी, आर्थिक वृद्धि होगी। आर्थिक वृद्धि होगी तो स्टॉक्स में के दाम बढ़ेंगे, तो वहां पे तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जहां तक आपको फॉरेन मतलब अगले 1-1.5 साल 2 साल में पैसे चाहिए, तब आप वहां पे तो जो पीछे का केस होता है, वहां पे तो आप 10, 15, 8, 9, 10 साल वहां पे इक्विटीज आ गई। बाकी जो पीरियड उससे कम है, जहां पे आपको पैसे चाहिए, मान लीजिए आज से 5 साल बाद, वहां पे आपको एक मिक्स चाहिए होगा इक्विटी और डेट का। तो फिर आपने या तो आप म्यूचुअल फंड से गए, या तो आपने कुछ पोस्ट ऑफिस प्लस इक्विटी फंड या हाइब्रिड फंड, अगर हम कहें सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड, वो वहां पे गए, उस टाइप की चीजें आपने की। तो आपको कब पैसे की जरूरत है? अगर आपको फौरन पैसों की जरूरत नहीं है, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए। और अगर कई बार तो सोनू, मैं ये कहूंगा कि कुछ ना करना भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? आप जो कर रहे हैं वो या तो वो करते रहिए या कुछ नया मत कीजिए।
उदयन, इस रोचक चर्चा को जारी रखेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उन पर एक नजर डालने के बाद विश्व भर में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने पर जारी चिंताओं के बीच अमरीकी शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव वाले सत्र के बाद एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट आ गई। जापान का निक्केई सूचकांक 0.9% की गिरावट में रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.8% के नुकसान में रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.1% लुढ़क गया और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.4% के घाटे में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.1% की मामूली गिरावट पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी मंदी का रुख था। लंदन का फुटसी 0.5% के नुकसान पर था। फ्रांस के कैक में 1.7% की गिरावट थी और जर्मनी का डैक्स 1.6% के नुकसान पर था। Moving on to the US market, the S&P 500 and Nasdaq ended lower. The S&P 500 dipped after briefly touching its highest level since 25th February. The index has rebounded over 40% since mid-March, even as COVID-19 infections rose rapidly in Arizona, California, and Texas, and about 35 other states. The S&P 500 declined 0.9% and the Nasdaq Composite plunged 2.1%. The Dow Jones Industrial Average managed to close in the green but remained flat. Udayan, we have seen that the Asian markets have been volatile. What is your read of the U.S. economy and the securities market? Do you expect volatility before the elections in November, which will determine who will be the political leader of the U.S.? Well, Arjun, as with the rest of the world, we can expect a volatility to be there in all the markets. But certain markets will slightly do better wherever there is slightly more positive news, where investors think that the COVID situation is more or less under control. So, for instance, the Chinese stock markets are seeing a lot of inflows going in simply because international investors think that Chinese government, they seem to think that Chinese government has got a hold over the COVID situation. So you would see that the market is kind of booming at the moment, or should we say there's an upturn at the moment and very consistent. So whenever we are going to see positive news, whether it's a vaccination or the deaths coming down or the infections coming down, lockdowns being eased, more economic activity being allowed, then you see markets cheering it, responding positively. Whenever you're going to see some bad news coming in, hear bad news coming in, the markets are going to react. And since we don't have a medicine for this infection, this zigzagging, yo-yoing, gyrations will keep continuing. उदिन, जहां तक कोरोना वायरस के प्रसार का सवाल है, वही एक रीजन भी है कि सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी ज्यादा डाल रहे हैं सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमीज को। तो आपको लगता है वो जो लिक्विडिटी का फैक्टर है वो एक तरह से मार्केट्स के लिए कहें पॉजिटिव भी हो जाता है? बिल्कुल, और ये लिक्विडिटी जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस सोनू आती है तो फिर लिक्विडिटी इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सडनली मान लीजिए ठप हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो कैश का मूवमेंट एकदम से ठप हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है। तो तब एक इंटरवीनिंग अथॉरिटी को आके, जो कि सेंट्रल बैंक होता है, वो उसको आके वो सप्लाई देना पड़ता है। वो जैसे आपके अगर बदन में खून की कमी हो जाती है तो आपको ब्लड डोनेशन लेना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। उसी तरीके से कैश जो है, लिक्विडिटी जो है, वो लाइफ ब्लड है इकोनॉमी का। वो अगर नहीं होगा तो फिर आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती, इकोनॉमिक की जो बॉडी है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये जो है ये कॉमन फीचर बना रहेगा पूरे साल, क्योंकि जब तक आपका ये कोविड सिचुएशन के ऊपर हम लोग कंट्रोल में नहीं आते हैं, गवर्नमेंट्स के पास, इकोनॉमिक थ्योरिस्ट्स के पास और इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स के पास बहुत ज्यादा टूल्स नहीं है। ब्रॉडली यही टूल्स होंगे, फिस्कल स्टिमुलस होगा, सपोर्ट होगा और एंड मॉनेटरी सपोर्ट होगा। आइए अब रुक करते हैं करेंसी बाजार का और फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की तुलना में रुपया 23 पैसे की गिरावट दर्ज करता हुआ 75 रुपये 42 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में भारी बिकवाली और अमरीकी मुद्रा में मजबूती के बीच कारोबारियों द्वारा जोखिम उठाने की प्रवृत्ति कमजोर रही। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता से रुपये को समर्थन मिला, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच
बीच कारोबारी खतरा उठाने से बचते दिखे। उदयन, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गए हैं, $500 बिलियन से अधिक हो गए हैं। ये आपको लगता है कि करेंसी की मजबूती के लिए और इकोनॉमी के लिए भी एक अच्छा कहे स्तंभ है? बिल्कुल, करेंसी फॉरेक्स रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आपके जो सेंट्रल बैंक है और गवर्नमेंट है उनके पास वो हथियार है ताकि इंटरवीन कर सकें हैं और कर सकें। पर पीछे आप जैसे कि आप जानते ही हैं और हम सब जानते हैं कि पीछे काफी सारे फॉरेन डील्स हुए हैं एक बड़े कंपनी का, और उसके वजह से काफी फॉरेन इनफैक्ट कल ही गूगल का भी हुआ है, उसका ऑफकोर्स पैसे तो बात नहीं आएगा। वो उस वजह से एक, और ये इतने बड़े नाम जब डील्स करते हैं तो इसका एक सिग्नलिंग इफेक्ट आता है। तो मान लीजिए चारों तरफ आपकी खबर उतनी अच्छी नहीं, पर आपकी वो ये डेवलपमेंट्स हो रहे, तो फिर एक उम्मीद बनी जा रहती है कि ठीक है ये कुछ हो रहा है पॉजिटिव। तो ये काफी कुछ जो है सेंटिमेंट को बरकरार रखने के लिए ये डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसका फ्लो भी आया है। पर अगर हम मिस्टेक करें कि एक ब्रॉड बेस्ड एफडीआई या ब्रॉड बेस्ड फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो हो रहा है, वो शायद सही नहीं है। कुछ तो इन्फ्लोज इसलिए भी हुए थे कि काफी डीप करेक्शन हुआ था, तो काफी कुछ पैसा उस वजह से आया। पर अभी जो काफी कुछ सर्ज हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, और उसका हमारे एक्सचेंज रेट पे भी इम्पैक्ट पड़ गया, वो इसलिए हुआ कि कुछ बड़े डील्स हुए हैं और उसकी वजह से इन्फ्लोज आए हैं। Udayan, just coming back to the currency market, do you see the RBI offsetting the rupee weakening by selling more dollars out of its reserves in the open market? Well, Arjun, what they were trying to do is, at some point last week, I think, the rupee appreciated a little bit, and then I think there were reports, there were unconfirmed reports that RBI let it, slide down a little bit. So, to me, as an observer, I get a sense that RBI has a take on where the rupee should be vis-a-vis the dollar. And with that foreign exchange war chest it has, it will probably keep moving in and out of the market, making those mild interventions so that the rupee remains there. They don't want it to appreciate too much, and they don't want to depreciate too much. So I think they got a sense where they want the rupee to be, and that's how they're going to operate. In more news, Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan today held discussion with his Australian counterpart Gregory Andrew Hunt on bilateral health cooperation, including management of COVID-19. Speaking on the need for working together during the digital interaction, Dr. Harsh Vardhan said, healthcare in India is one of the fastest growing sectors and is expected to hit $275 billion mark in the next 10 years. India's domestic demand is expected to remain the key growth engine regardless of any turbulence in the global economy. India also offers vast opportunities in research and development and medical tourism. The health minister said India's traditional holistic medical systems like Ayurveda and yoga can help Australia curb obesity and related diseases. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बढ़ाई गई अवधि में राज्यों द्वारा अब तक 2,95,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न उठाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जुलाई से नवंबर तक राज्यों को कुल 203 लाख टन खाद्यान्न दिए जाने हैं। Moving on to the oil market, oil prices today fell on worries that new clampdowns on businesses to stem surging U.S. coronavirus cases could threaten fuel demand recovery. Expectations that OPEC Plus might ease output cuts from August in an upcoming meeting also weakened global crude prices. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $42.30 per barrel, while WTI crude prices were around $39.60 per barrel. और चलते चलते सोने के वैश्विक मूल्यों में नरमी के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 114 रुपए सस्ता होकर 49,996 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 140 रुपए सस्ती होकर 53,427 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मंदी के साथ $1,798 प्रति आउंस पर था, जबकि चांदी मामूली बढ़त से $19.03 प्रति आउंस पर थी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। उदयन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic equity benchmarks plunged 1.8% amid negative global cues.
Sensex closes at 36,033. Nifty settles at 10,607. Rupee weakens 23 paise against the US dollar. And crude prices slip amid increasing coronavirus cases worldwide. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.